Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Bala's Education Point. Bala's Education Point ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2014 ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ 2015 ਦਾ ਸਾਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੇ 2016 ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ 17 ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ 2019 ਦਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 20 ਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 96468 ਹੈ, 10103 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਉਹ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਇਹ CDP ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2014 ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅ ਚਾਈਲਡ ਫਰੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, A child from economic weaker section as admitted to the church class। अगर कोई ऐसा कोई बच्चा है जो थोड़े अपनी क्लास च एडमिशन लेंदा पिया in the private school ਦੇ ਵਿੱਚ where other children are not from the other category। यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो इस कैटेगरी च नहीं आंदा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਯੂ ਵਿਲ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਪ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਾਈਜ਼ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਕ ਦ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਸਕੂਲ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਅ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ NCF ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਸੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਿਸਟਿਕ ਮੇਥਡ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੋਰਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇਖੂਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੀਪ ਦ ਚਾਈਲਡ ਦ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਠਾਓਗੇ,
उस तरह जिवें रेगुलर बच्चे पढ़ते हुए ने उस तरह दूसरे बच्चे भी की किया जाऊगा, टीच कर मतलब पढ़ाया जाऊगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन राइट आंसर आऊगा इस क्वेश्चन नूं लैके। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर मैं सैकेंड की गल कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। इत्थे गल की गई है नोट के बारे, किहड़ी चीज़ नोट की गल करदा पिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल की गल की गई है कि नीचे दी ऑप्शनों के विचों एक ऐसी ऑप्शन ऐसी है जो ग्रोस मोटर स्किल के रिलेट नहीं करती। जिवें ऑप्शन दी हुई ने थ्रैडिंग ऑफ द बीड्स इन अ स्ट्रिंग, मतलब अगर देखा जाए तो तुसी सिंपल जे वे इत्थे माला का जाप किया गया है। बी पॉइंट कहता कि रनिंग अ रेस, दौड़ को भी गल की गई है। सी पॉइंट है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, या फिर कहता पौड़ियां कि जाना या उतरना। डी पॉइंट की गई हॉपिंग ऑन अ वन लैग, मतलब एक लत्त उत्ते छाल मारनी या जंपिंग की गल की गई है। अगर तुम देखो तो ग्रोस मोटर स्किल की गल करता पे है तो ऑप्शन एक ऐसी है जो ग्रोस मोटर स्किल नहीं मैच करती है, तो ऑप्शन नंबर साढ़े वास्ते आह बनेगी ए ऑप्शन, क्योंकि ग्रोस मोटर स्किल रिलेट नहीं करती। हुण देखा जाए तो इस चीज़ में असीं की बोलांगे, ये बोलांगे नज़रिया कि ये आई द कोऑर्डिनेशन होएगा किहदे नाल, तुहाडे अपने हैंड्स नाल। आई और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन होएगा तो असीं ग्रोस मोटर स्किल नहीं बोलते, असीं फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। ये ध्यान रखियो, आईज प्लस हैंड्स का कोऑर्डिनेशन बनता ए पॉइंट के नाल। बाकी जी बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है थोड़ी बनती ने, या डी ऑप्शन बनती है थोड़ी अपनी ग्रोस मोटर स्किल्स के नाल। तो नीचे दी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ऐसी ऑप्शन है जो ग्रोस मोटर एग्जाम्पल की मतलब क्वेश्चन टर्म की एग्जाम्पल नहीं हैगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए आऊगी क्वेश्चन नंबर सैकेंड नूं लैके। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड की गल करते हैं। थर्ड विच कहता की है 3 स्टूडेंट्स विद डायलैक्शिया, मतलब कोई 3 बच्चे ऐसे ने जिन्हों एक तरह की डिसेबिलिटी है जो थोड़ी क्लास एडमिट किए गए हैं। एज अ टीचर यू विल, तुसी की टीचर हो तो तुसी की करोगे फिलहाल। ठीक है, तो यही ऑप्शन भी सेम ऑप्शन आनी सी जिवें तुहानूं अपने मेरे नाल फर्स्ट क्वेश्चन किया है, क्योंकि इकनॉमिक वीकर सैक्शन नाल गल करता पिया है, इत्थे डिसेबिलिटी कास्ट नाल गल करता पिया है। तो फिलहाल ऑप्शन सारे पढ़ लेने। फर्स्ट ऑप्शन कहता की है आस्क दैम टू बी अ स्पैशल क्लास। इत्थे बच्चे नूं पूछा जाए कि स्पैशल क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जबकि मैं पहले पॉइंट नूं पूरा चंगी तरीके नाल पढ़िया नहीं हैगा, फिर भी मैंने स्पैशल क्लास नूं देखते गल करती कि बच्चे नूं कोई स्पैशल क्लास वास्ते किया जा रहा है। तो ऑप्शन गलत बन जूगी, क्योंकि NCF च कहा गया है कि बच्चे तुम रेगुलर तरीके के आने वास्ते कहोगे। जिवें नॉर्मल बच्चा पढ़ाने हुए हो तो उत्थे नॉर्मल बच्चे ही एक तरह का बाकी बच्चा वांग भी जो इस तरह के बच्चे उन्होंने पढ़ाया जाऊगा, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाऊगा, चाहे बच्चा एक्सैप्शनल केस का बच्चा है या साडे वास्ते नॉर्मल केस का बच्चा है। बी पॉइंट कहता कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसीपल टू गिव एन असिस्टेंट टीचर, नो ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। ठीक है, उस तरह सी ऑप्शन साडे वास्ते कहती है sensitize their other children about their needs and learn technique to teach them। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, टीचर भी पूरा करेगा और किहड़ी टेक्नीक नाल सीखेगा तुसीं उन्हां नूं पढ़ाउण दी कोशिश करोगे। मतलब कि बाकी बच्चों को कहा गया कि तुसीं उस बच्चे नाल कोऑर्डिनेशन करो। ठीक है, मतलब सोसाइटी मेनटेन करो, चाहे बच्चा साडे वास्ते नॉर्मल है या साडे वास्ते बच्चा की है एक्सैप्शनल है। लेकिन क्वेश्चन के नाते पूछा गया एज अ टीचर, तो टीचर ही बच्चे नूं कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी साडे वास्ते करैक्ट होएगी। जिवें कि क्वेश्चन दे विच उस चीज़ की गल कीती कि टीचर किस तरह का अपने आप नूं बच्चे नूं क्रिएट करूगा कि ताकि बच्चे की लर्निंग नूं फुलफिल किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो जवाब आएगा और सी ऑप्शन होएगी। ठीक है, इंग्लिश दे विच भी दिती हुई है, पंजाबी च भी दिता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम भी आती है किसी चीज़ को लैके तो बाय लैंग्वेज नोट्स है साडे पास। ठीक है जी, जिस तुहानूं करवाया भी जा रहा है एज इट इज़। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन को स्टार में कर लेना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज़ को लैके। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता कि है अरेंज द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्ले। नीचे कुछ टाइप्स दी हुई ने प्ले दियाँ, इनू तुसी अपनी एज के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं डिवेलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की एक तरह की कह सकते हैं कि बच्चा जिमें जिमें वड्डा होंदा जाऊगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग तुसी इस प्ले नूं की करना सीक्वेंस ऑर्डर च लगाना है। तो नीचे 4 तरह के प्ले दिते हुए ने, जिमें कि फर्स्ट दिता हुआ है मेक बिलीव प्ले। अगर इतने बच्चे को ना समझ आए तो नीचे मैं ब्रैकेट च लिख देना, इनू असी अपने नोट्स के अकॉर्डिंग या देखा जाए CDP के अकॉर्डिंग प्रिटेंड प्ले बोलते हैं। ये ध्यान रखियो केड़ा प्ले बोलांगे, प्रिटेंड प्ले। मेक बिलीव प्ले का मतलब होता है प्रिटेंड प्ले। उस तरह सैकेंड पॉइंट साडे वास्ते है कंसेप्टिव प्ले,
फोर्थ पॉइंट साडे वास्ते हैगा फंक्शनल प्ले। अगर मैं फंक्शनल की गल करा तेनों असीं बोलते जिहड़ा बच्चा बचपन च खेलदा इनफेंसी पीरियड, ठीक है जी, ध्यान रखना इनफेंसी प्ले की गल की गई है इस फंक्शनल प्ले नूं। या गेम्स भी रूल्स इत्थे पता लगता गेम्स भी रूल्स वाला पॉइंट ये उदों होगा जो बच्चा की हो चुकिया होगा, बड़ा हो चुकिया होगा, डिसीजन खुद लै सकदा होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुहानूं सब नूं पता है कि जिहड़ा चौथा पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है फंक्शनल प्ले, वो या तो शुरुआत दे विच होगा, गेम्स रूल साडे वास्ते लास्ट विच होगा। तो ऐसी कोई ऑप्शन देखो जिस फोर्थ ऑप्शन साडे वास्ते लास्ट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं फिलहाल ये मैं सी ऑप्शन को कट ऑफ कर देना क्योंकि थर्ड विच गल करदा पिया, यानी कि फोर्थ पॉइंट थोड़ा अपना गेम विद रूल्स आ जाऊगा, ठीक है। और फर्स्ट नंबर पर अगर मैं गल करा तो फंक्शनल प्ले आ जाऊगा। हुण देखो कोई ऐसी ऑप्शन देख लो जिहदे विच थर्ड थोड़ा पहले नंबर पर रखा जाऊगा, यानी कि डी ऑप्शन थोड़े वास्ते रॉन्ग हो जाऊगी। हुण बच्चे ए और बी, ए दे विच भी थर्ड है, बी दे विच भी पहली ऑप्शन थर्ड है, ए दे विच भी थोड़ी लास्ट ऑप्शन फोर्थ है, बी दे विच भी फोर्थ ऑप्शन की है लास्ट है थोड़े वास्ते। हुण देखना की है मेक अ बिलीव प्ले, और ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि प्ले ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ है स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट करना मतलब लॉजिकल वे ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ करना शुरू करता प्ले ਨੂੰ स्टार्ट करना शुरू करता लॉजिक तरीके ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ मैं कह सकता कि ਜਿਹੜਾ दूसरा पॉइंट आऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है कंस्ट्रक्टिव प्ले आऊगा। नैक्सट विच कहता कि थर्ड पॉइंट प्रिटेंड प्ले, ये साडे वास्ते थर्ड बन जूगा। तो ऑप्शन चैक कर लो फिलहाल एक बारी, जिहदे विच थर्ड ऑप्शन साडे वास्ते फर्स्ट है, सैकेंड ऑप्शन साडे वास्ते सैकेंड है, फर्स्ट ऑप्शन साडे वास्ते थर्ड आ जूगी और फोर्थ साडे वास्ते फोर्थ आ जूगी। तो ऑप्शन अगर देखिए होण तां ए ऑप्शन साडे वास्ते की है राइट है। जिवें कि जिवें तुहानूं सब नूं दे पढ़े होंगे तो उस तरीके दे नाल तुहानूं पता भी लग जूगा कि किहड़ी ऑप्शन मेनली सानूं डिस्क्राइब करनी है। टाइम भी घट लगेगा, जिमें जिमें तुम इग्नोर करते जाओगे या दूसरी चीज़ों को अलग करते जाओगे तो टाइम घट ही लगेगा, ठीक है जी। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 5th की गल करते हैं। 5th विच कहता की है द इंक्रीज स्टीरियोटाइपिंग। बहुत बारी एग्जाम्पल करवाई है स्टीरियोटाइपिंग की, जो चीज़ जिहदे वास्ते बनी है वो वास्ते ही बनी है। लड़कियां वास्ते कुकिंग बनी है तो लड़कियां वास्ते प्लेग्राउंड बने ने, ठीक है। इस तरीके असीं स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो मैं देखा तेरे च स्टीरियोटाइपिंग साडे जेंडर दे नाल रिलेट करती है ना, एक तरह दियां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी कह सकते हैं। तो इत्थे कहता कि जिमें जिमें स्टीरियोटाइपिंग बढ़ती जाती है, एटीट्यूड बढ़ता जाता है, मूवमेंट ऑफ मोर ट्रेडिशन जेंडर आइडेंटिटी बढ़ती जाती है, बिहेवियर ऐसा बनता जाता है, तेनों असीं की बोलांगे जेंडर आइडेंटिटी वास्ते। तो अगर देखा जाए तो सारी ऑप्शन तुसीं देख रहे होंगे, ए ऑप्शन कहते प्रेजुडाइस है, बी कहता कि इंडोक्ट्राइजेशन है, सी साडे वास्ते जेंडर इंटेंसिफिकेशन है, डी पॉइंट साडे वास्ते रोल प्लेइंग है। अगर मैं देखा तो ऑप्शन साडे वास्ते कोई भी ऐसी ऑप्शन हैगी है जो स्टीरियोटाइपिंग नाल मिलती जुलती है, तो देखा जाए तो जेंडर सी ऑप्शन साडे वास्ते राइट आंसर बनूगा। ध्यान रखना क्योंकि जो स्टीरियोटाइपिंग की गल की गई है तो स्टीरियोटाइपिंग वैसे मैं तुहानूं बहुत बारी समझा चुकिया, एक बार तुहानूं फिर भी दस देना कि लड़कियां नूं ग्रीन कलर पसंद नहीं आता, पिंक कलर ही पसंद आता है। लड़कियां नूं हमेशा ग्रीन या कोई ऐसे ब्राइट कलर्स ने जो उन्होंने पसंद आएंगे, ठीक है। कोई असीं कह सकते हैं कि लड़कियां वास्ते जो गेम्स बनिया ने लाइक किचन का सैट बॉक्स लिया के दे दिए या डॉक्टर का बॉक्स आप लड़कियां नूं दे दिए। तो इस चीज़ों की गल की स्टीरियोटाइपिंग नूं लैके लड़के मैथ में हुशियार होंगे, मैडिकल ही ले सकते, लड़कियां नॉन मैडिकल नहीं ले सकदियां। तो ऐसी कुछ स्टीरियोटाइपिंग बनी हुई है सोसाइटी को लैके, जिस एक सोशल कंस्ट्रक्ट की गई कि जेंडर वास्ते जी चीज़ बनिया ने उन्होंने वास्ते ही बनिया ने। तो 5th ऑप्शन का जो आंसर आऊगा मेरे साडे वास्ते वो की बनूगा, सी ऑप्शन बनूगी, ठीक है जी। नैक्सट आओ हम गल कर रहे हैं 6th क्वेश्चन लैके, जो एक सिंपल क्वेश्चन है जेंडर इज ए, कहते जेंडर एक लिंग साडे वास्ते की है, ठीक है। तो ए ऑप्शन साडे वास्ते सोशल कंस्ट्रक्ट है, बी साडे वास्ते इमोशनल है, इमोशनल की कोई गल ही नहीं की गई, ठीक है जी। इस करके मैं क्रॉस करूंगा फिलहाल इस चीज़ को लैके। सी पॉइंट साइड वास्ते की है साइकोलॉजिकल है या साडे वास्ते सोशलॉजिकल है। तो बहुत सारी नोट्स के आप डिस्क्राइब किया है, पहला भी क्वेश्चन आ के चुके हैं। जो एक लिंक पर दिता गया यह सोसाइटी के कंडी तो दिता गया, यानी कि सीधे डायरैक्ट ऑप्शन मैं क्लिक करूँगा, ये साडे वास्ते की है सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये समाज ने वर्ड दिते हुए ने मेल का होना और फीमेल का होना, इन्हें होर ये जन्म तो नहीं सानू मिले, ये चीज़ें सोसाइटी दिती हुई ने जेंडर बेस पे, ठीक है। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 7th की गल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के विच की कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट। नीचे दी स्टेटमेंट दे विच तुहानूं किहड़ी सही लगती है। ए पॉइंट कहता की है इमोशन डू नॉट अफेक्ट द लर्निंग एट ऑल, कि जिहड़े इमोशनस ने
साडी लर्निंग नूं इफैक्ट नहीं करते, जबकि गलत दिता हुआ इफैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नोट लिखा हुआ है तो यह ऑप्शन साडे वास्ते की हो जूगी, गलत हो जूगी। बी पॉइंट साडे वास्ते कहंदा की है, लर्निंग में भी बहुत इनहैंसड और इनहैबिटेड बाय द इमोशंस, कि जिहड़ी लर्निंग है वो सानू कह सकते कि भावनात्मक तौर पर सानू एक वधाई भी जा सकती है या फिर जिन्हों असीं रोक भी सकते हैं, किसी हद तक ठीक लगती है। ठीक है, सी पॉइंट फिर पढ़ लेने आ, लर्निंग इज बैटर दैन लर्नर आर इमोशनल, कि लर्निंग उदों बैटर होंगी है जो एक लर्नर इमोशनल होंदा है। लर्नर का मतलब स्टूडेंट की गल की गई है, ये ध्यान रखना, ये जबकि गलत बनेगा साडे वास्ते। लर्नर फॉरगेट क्विकर, एक लर्नर जिहड़ा होएगा जल्दी जल्दी भुल जूगा वैन दे आर इमोशनल, जो इमोशनल होएगा। तो बी आंसर एक तरह राइट आंसर है, जो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की गल करता है, एक एप्रोप्रिएट आंसर है। साडे वास्ते जिहड़ा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो बनेगा साडे वास्ते बी ऑप्शन बनेगी, क्योंकि लर्निंग साडे वास्ते दोनों चीज़ां ने, इनहैंस्ड भी है और साडे वास्ते इनहैबिटेड भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8 की गल करते हैं। 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा फिलहाल, जो साडे अपनी डिसेबिलिटी दे नाल गल करदा भी है। तो क्वेश्चन कहता की है, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, नीचे दिती विचों केड़ी ऐसी जो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ए ऑप्शन साडे वास्ते दिते भी है कैलकुला, तो ध्यान रखियो ये वर्ड तुहानूं बहुत बारी समझा रखे, इत्थे गल कीती गई कैलकुलेशन बेस ते। ठीक है, कैलकुलेशन के बेस ते गल कीती गई है। उस तो बाद सैकेंड कहता एफीसिया, एफीसिया का मतलब होंगे कम्युनिकेशन की गल की गई है। ठीक है, साने लर्निंग तो मतलब लेना है, तो ध्यान रखियो ये कि सिंगल सिंगल चीज़ मैं लिखन जा रहा, तो फिलहाल तुम खुद दसना कि किहड़ी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है साडे वास्ते। डायलैक्शिया जो साडे वास्ते रीडिंग की गल करूगा, ठीक है जी, रीडिंग की गल करूगा। और लास्ट में साडे वास्ते है डिस्ग्राफिया जो साडे वास्ते मोटर स्किल की गल करता है। तो ये विचों एक ऐसी ऑप्शन है जो साडे लर्निंग डिसेबिलिटी ने रिलेट नहीं करती, बाकी पहली 3 करती हैं, लास्ट वाली नहीं करती। तो जिवें कि मैं तुहानूं मीनिंग भी दस चुकिया, तो इत्थे तुहानूं पता लग जूगा कि डी ऑप्शन साडे वास्ते की है, राइट आंसर है। उन्हें नोट की गल की गई है, ध्यान रखियो, बाकी 3 हैगियां ने, लास्ट वाली नहीं हैगी। डी ऑप्शन इहदा राइट आंसर बनूगा। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ने और बहुत ईजी क्वेश्चन भी ने फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो की हायरार्की 5 टाइप की सी, तुहानूं सब नूं पता है किहड़ी किहड़ी सी, किहड़ी किहड़ी नहीं सी। यानी कि पहली साडे वास्ते हैगी है एक तरह की सेफ्टी बिलोंगिंगनेस नीड्स भी कह दिंदे आ, दूसरी साडे वास्ते सेफ्टी नीड्स कह दिंदे आ, तीसरी साडे वास्ते किहड़ी है, मतलब कि इस गल की गई है कि किहड़ी नहीं हैगी। तो फिलहाल पढ़ लेने किहड़ी किहड़ी नहीं हैगी। ए ऑप्शन कहते कोगनीशन, इत्थे पता लगता कोगनीशन उन्होंने वास्ते नहीं सी। ठीक है, लेकिन आप बाकी चीज़ा भी करांगे, मतलब कि ए आंसर राइट आंसर आऊगा ना, मैं सर्कल कर देना फिलहाल, लेकिन बाकी चीज़ा भी पढ़ांगे। देखो की कहते ये कह रहे हैं कि बाकी नीड्स हैगियां सी, किहड़ी किहड़ी नीड्स, पहली दी हुई साइकोलॉजिकल, वो इन्हां दी पहली नीड सी। ठीक है, उस तो बाद सी ऑप्शन कहते सेफ्टी, ये इन्हां दी दूजी नीड सी। डी पॉइंट कहते बिलोंगिंगनेस, वो इन्हां दी तीजी नीड सी। चौथी नीड तुहानूं सबनूं पता होना चाहिए, चौथी साडे वास्ते एस्टीम नीड सी। ठीक है, मैस्लो के अकॉर्डिंग ये चौथी साडे वास्ते किहड़ी सी, एस्टीम नीड सी। फिफ्थ साडे वास्ते किहड़ी सी, सैल्फ एक्चुअलाइजेशन सी। ये ध्यान रखना, सैल्फ एक्चुअलाइजेशन की गल मैस्लो ने कीती सीगी। आ 5 नीड्स मैं तुहाडे सामने पूरे डिस्क्राइब कीतियां ने, तो एक ही ऑप्शन साडे वास्ते गलत है ये कोगनीशन। तो ए पॉइंट साडे वास्ते राइट आऊगा, जिहड़ी मैस्लो हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग इंक्लूड नहीं करती है। नैक्सट आओ 10th क्वेश्चन, द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ द लर्निंग वाज प्रपाउंडेड बाय। बहुत बारी हो चुकिया एक गल की सी थॉर्नडाइक ने, जो ये थ्योरी मतलब की गई सी किहदे उत्ते, तुहाडे अपने कैट उत्ते। तो थॉर्नडाइक इहदा राइट आंसर आऊगा, सी ऑप्शन साडे वास्ते की आऊगा, राइट आंसर आऊगा। ट्रायल एरर थ्योरी थोड़ी प्रपाउंडेड की सी किन्ना ने, थॉर्नडाइक ने, जो किहदे उत्ते की गई सी, कैट उत्ते की गई सी। ठीक है जी, नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 11 की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 च की कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड टीचिंग स्ट्रैटेजी। इत्थे गल की गई है नोट की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ स्टूडेंट्स विच स्पीच एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ऐसी किहड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है स्टूडेंट के नाल जो स्पीच और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वाली ना होवे। ठीक है, मतलब जो तुहाडे वास्ते कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और स्पीच और डिसऑर्डर के नाल मिलती जुलती स्ट्रैटेजी नहीं है, जो टीचर से नाल नहीं मिलती जाती। ठीक है,
तो ए पॉइंट कहता कि लिसन पेशेंटली, ठीक है। बी पॉइंट साडे वास्ते कहता कि इंकरेज रेगुलर ओरल कम्युनिकेशन। सी पॉइंट कहता कि आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ द मैसेज आर अनक्लीयर, ठीक है। डी ऑप्शन साडे वास्ते कहता कि है हैल्प देम फिनिशिंग देयर सेंटेंस। अगर मैं गल करा तो टीचर इत्थे हैल्प करेगा कहता कि है जो सेंटेंस नूं कंप्लीट करेगा। तो नोट की गल की गई है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इको ही आएगा साडे वास्ते डी ऑप्शन। बाकी जिहड़ी चीज़ां हैगियां ने वो तुहाडियां अपनियां इस क्वेश्चन दे नाल मिलदी जुलदियां ने। नोट की गल की गई है इहदे विच पेशेंटली भी होएगा, कम्युनिकेशन भी होएगा फिलहाल, और क्लैरिफिकेशन की गल भी की जाऊगी टीचिंग की स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ियो की कहता इस चीज़ के विच, ठीक है। तो डी ऑप्शन साडे वास्ते गलत मन्नी जाएगी इहदे विच, तो डी आंसर ही बनेगा क्योंकि नोट दे नाल गल करदा है फिलहाल। बाकी तीन ऑप्शन ये आंसर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो डी ऑप्शन एक तरह की सही है, ये नोट की गल की गई है, ठीक है, नहीं की गल की गई है। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 12 की गल करते हैं। क्वेश्चन 12 विच कहता की है सैल्फ रिपोर्ट मैजर्स दैट आस्क पीयर्स। पीयर्स का मतलब होंगे तुहानूं सब नूं पता है जो तुहाडे अपने क्लासमेट होंदे ने या एजमेट होंदे ने उस चीज़ की गल की गई है। मतलब एजमेट ही मोइनली गल करदा पीयर्स नूं लैके। तो सैल्फ रिपोर्ट की तुहाडी गल की गई कि किवें मेजर की जाऊगी जो तुसीं अपने क्लासमेट्स दे नाल उसनूं की करदे हो अवैल्यूएट करदे हो, ठीक है। अपनी एबिलिटी नूं दूसरे बंदे की एबिलिटी दे नाल की करदे हो मैच करदे हो या फिर मेजर करदे हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिलहाल चैक कर लेने हैं। तुहानूं बहुत बार ये भी चीज़ समझा रखी है जो पीयर्स की गल की जाती है ना तो बच्चे जो एक बच्चा दूजे बंदे नाल अपना कंपैरिजन करता है या अपनी एबिलिटी से दूसरे बंदे की एबिलिटी नाल कंपैरिजन करता है तो एक तरह सोसाइटी बनाता है। तुहानूं ये भी बहुत बार दस रखिया क्योंकि टीचर का मेन काम ही प्रोजैक्ट देना कार्य वास्ते ताकि बच्चे आपस में कोऑर्डिनेशन लैके आन। तो सैल्फ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गल करिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इको ही साडे वास्ते डिपेंड करती है या आंसर के अकॉर्डिंग है सोशियोमैट्रिक टेक्नीक, यानी कि इनू चीज़ नूं लैके आऊगा तुहाडे अपने सोशल वर्ड नूं लैके आंदा है। क्योंकि गल कर रहे हैं ना कि साडे अपनी सैल्फ रिपोर्ट की मेजर करवानी है दूसरे बच्चे दे नाल जो पुछदा होगा। पीयर्स की गल की गई है तो ध्यान रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुहाडी आंसर बनूगा डी। इनू असीं सोशियोमैट्रिक टेक्नीक बोलते हैं। बाकी सारे तुहाडे वास्ते की एक तरह दी सैल्फ वैल्यूएशन की गल करूँगा। बाकी जी ऑप्शन दिती हुई ने क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा तुहाडा डी सोशियोमैट्रिक टेक्नीक, ठीक है जी। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता की है आ चाइल्ड परफॉर्म बैडली। एक बच्चा बुरे तरीके से खेल रहा सी, परफॉर्म कर रहा सी वाइल प्लेइंग टैनिस, जो वो टैनिस प्ले कर रहा सी। एंड नाउ ही और शी उन्हें फिर की किया इज मेकिंग एक्सक्यूज, उन्हें बहाने बाने शुरू किए। द कोर्ट वॉज नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड कि जो थोड़े पास टेबल टैनिस का कोर्ट होंगे वो चंगे तरीके कह सकते कि तैयार नहीं सी, प्रॉपरली मेनटेन नहीं सीगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल कादी है। पहली गल तो बैट खेल रहा सी तो वो इंटरनल मोटिवेशन की कमी सी, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने बहाना बनाया कि कोर्ट ठीक नहीं सी टैनिस का तो एग्जाम्पल साडे वास्ते की होगी तो इंटरनल नहीं होगी, और साडे वास्ते केड़ी होगी तुहाडे वास्ते एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन होगी। इंटरनल एट्रीब्यूशन तो उदों होंदी जो खुद उत्ते अपने उत्ते कहता कि हाँ मैं खुद ही नहीं चंगे तरीके नाल खेल रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग जी आंसर बनूगा 13वें अकॉर्डिंग और साडा केड़ी ऑप्शन बनेगी सी ऑप्शन। तो आंसर बनूगा तुहाडे वास्ते इहदे विच एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना इस बाहरले तरीके की गल की गई है, ये भी गल ध्यान रखियो जी, ठीक है। क्योंकि यह क्वेश्चन एक वाला भी आया मैंने तुहानूं करवाया सीगा 2016 की वीडियो के विच, उसको क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल वो क्वेश्चन पूछा से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उत्ते गल की गई सी, ठीक है जी। नैक्सट आओ बेटे, नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 14 दे विच हु प्रपोज्ड एथिक्स ऑफ केयर इज एन अल्टरनेटिव टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट। बहुत बारी जो कोलबर्ग थ्योरी की गल की गई सी तो वो दसिया गया सी कि जो एथिक्स की गल करते हैं तो यही बंदा एक बंदा जो नीचे दी ऑप्शन के है वो कोलबर्ग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सी या कह सकते उल्ट सी उस तो, ठीक है। तो जिमें कोलबर्ग की थ्योरी गल करती है तो अल्टरनेट सीगा उल्ट विकल्प की गल की जाती है। तो गल करिए तो एक ही बंदे का नाम है साडे वास्ते, और साडे वास्ते कौन है गैल्गियन। तो ध्यान रखियो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर बनूगा तो अपना हो ए ऑप्शन बनूगी ना कि कोई होर ऑप्शन बनेगी। तो ए ऑप्शन साडे वास्ते राइट बन चुकी ए। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 15 च कहता की है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द प्रिंसीपल। नीचे कुछ प्रिंसीपल से गल की है
दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज, जो 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 थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स ਵਧੂਗਾ, ਕਾਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨ ਇਵਰਸ਼ਨ। ਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਡਾਂਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਡਾਂਟ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। तो ध्यान रखना ये वास्ते ऑप्शन एक ही बनेगी नैगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि अनप्लीजेंट स्टिमुलस की किया जाऊगा, रिमूव किया जाऊगा करना है अगर बच्चे के बिहेवियर की किया जाऊगा, इंक्रीज किया जाऊगा। तो ध्यान रखना बहुत चंगे तरीके ਨਾਲ गल की गई इस टॉपिक ਨੂੰ लेके, बहुत इंपोर्टेंट है लर्निंग की थोड़ी प्रिंसीपल्स ਨੂੰ लेके। तो डी ऑप्शन साडे वास्ते की बनूगी, राइट आंसर बनूगा। ध्यान रखना जी, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ ਨੂੰ लेके, पर मैं तुहानूं कह देना इत्थे गल कीती गई अवर्सिव नो अनप्लीजेंट स्टिमुलस की गल कीती गई है। डी ऑप्शन साडे वास्ते राइट आंसर आऊगा, नैगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 15 नैक्सट आओ, क्वेश्चन नंबर 16 दे विच कहंदा की है द वीकेस्ट लिंक इन एस्टैब्लिशिंग एन इफैक्टिव एंड एफिशिएंट। इफैक्टिव की गल कीती है और मतलब एफिशिएंट की गल भी कीती है। किहड़े बच्चे दे नाल, जो बच्चा साडे वास्ते काहदा है एजुकेशन सिस्टम फॉर चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स का बच्चा है। तो एक तरह की कह सकते हैं कि इफैक्टिव और एफिशिएंट तरीके वास्ते किहड़ी चीज़ होनी जरूरी है, एको ही मेन क्राइटेरिया होना जरूरी है कि टीचर को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिता जा सके। ठीक है, बाकी चीज़ां तो फिर भी हो सकदियां ने। तो ऑप्शन देख लेने किहड़ी बाकी चीज़ां ने। पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, मतलब ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कहता की है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सी ऑप्शन एबसेंट ऑफ रिलेटेड रिसर्च है, या डी ऑप्शन लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को लैके वीकेस्ट की गल की गई है। ठीक है, जेडे बच्चे चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स वाले ने, तो ऑप्शन नंबर साडे वास्ते मेनली यही डिपेंड, मतलब इको ही साडे वास्ते डिपेंड करती है कि एक टीचर की कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए ने ताकि बच्चे जेडे विशेष लोड़ा वाले ने, ठीक है, स्पैशल नीड्स वाले ने, उन्होंने दी नीड्स को किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। तो बी ऑप्शन साडे वास्ते राइट आऊगा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बी ऑप्शन। नैक्सट आओ, क्वेश्चन नंबर 17 च की कह रहे हैं, हु अमंग द फ्लोइंग व्यूड चिल्ड्रन एज द टैबुला रासा। हुण ध्यान रखियो, टैबुला रासा का मतलब होंदा है की है कि जिहदे विच बच्चे नूं समझिया जांदा है कि बच्चा कोरी सलेट है। कोरी मतलब जो चीज़ पढ़ा दोगे बच्चा वही पढ़ लूगा, चाहे गलत है गलत पढ़ लूगा, सही है तो सही पढ़ लूगा। तो ध्यान रखिए, जो भी पंजाबी की गल की जाती है ना, तो टैबुला रासा का मतलब होंगे कोरी सलेट, ब्लैंक है बच्चा। ठीक है, तो वर्ड किन्ने तक किए गए सी, ये वैसे तो तुहानूं दस देना फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तुहानूं इस तरह ही याद करना पऊगा। ये गल की सी लोकेन ने। तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन साडे वास्ते की आऊगा, राइट आऊगा, ए ऑप्शन। नैक्सट आओ, क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, क्योंकि इन्होंने गल की सी बच्चे की माइंड नूं लेके, ये भी मैं तुहानूं दस देना फिलहाल। ठीक है, माइंड जिस तरह पढ़ा दोगे बच्चा उस तरह ही सीख लेगा। क्वेश्चन नंबर 17 ए ऑप्शन राइट आऊगी। नैक्सट आओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता की है कंसैप्ट ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी इज एसोसिएट विद, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ एपिस्टेमोलॉजी मतलब इस चीज़ का कंसैप्ट किन्ना ने दिता सी। वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ सेम क्वेश्चन पूछा सीगा, ਆਪਾਂ 2020 तो पिछों कर रहे हैं, इस करके तुहानूं लग रहा होगा कि नवा क्वेश्चन है। वैसे तुहानूं पता होना जरूरी है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की गल तुहाडे अपने जीन पियाजे ने की सी, ये भी ध्यान रखियो। ऑप्शन दे विच दिता होया आंसर है तो साडे वास्ते सी ऑप्शन बनूगा, जीन पियाजे ने गल की सी एपिस्टेमोलॉजी दी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी दी, ये भी ध्यान रखना। नैक्सट आओ, क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब नीचे ऑप्शन दी होंगियां और सारे एक तरह फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक ऐसा फैक्टर है जो मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ऑप्शन फिलहाल देख लेने केड़ी है, क्योंकि इतने गल की एक्सेप्ट दी, एक नहीं करूँगा, परसैप्शन, बी ऑप्शन है रीजनिंग, सी ऑप्शन है वर्बल फैसिलिटीज, या डी ऑप्शन है लैंग्वेज। तो ध्यान रखना, सामने नोट्स किए हुए ने, फिलहाल पढ़े भी बहुत भाई ने,
इन्हां ने लैंग्वेज की गल नहीं की सी, इन्हां ने पहले गल की थॉट की, ठीक है जी, ध्यान रखना। फिर बाद च गल की सी लैंग्वेज की। तो पहला जो गल की गई जीन प्राइस थ्योरी के अकॉर्डिंग, पहले ने पहले नंबर पर अपने किनू रखिया, थॉट नू रखिया, जबकि फिगोस्की ने लैंग्वेज को सब तो पहला रखिया, ठीक है। उल्टे सी दोनों एक दूजे दे। तो ध्यान रखियो डी ऑप्शन साडे वास्ते राइट आंसर बनूगा। भाषा, भाषा की गल इन्होंने नहीं की सी, इन्होंने थॉट की गल की सी फिलहाल, ठीक है जी। ईगोसेंट्रिक स्पीच की गल की सी इन्होंने। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग की है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव डिवेलपमेंट ऑफ इन द ह्यूमन बीइंग्स टेक प्लेस। मतलब एक कोग्निटिव डिवेलपमेंट बच्चे के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर 4 स्टेजेस डिवाइड करती जाती है। मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग वो 4 स्टेजिस किहड़ी-किहड़ियां ने, पहली गल तो किहड़ी-किहड़ी हो सकदियां ने और तुसीं इहनूं किस तरह सीक्वेंस ऑर्डर च लगाओगे। तो पहला देखा जाए तो ऑप्शन कन्फ्यूजिंग ने, जिहड़े बच्चे ने पढ़िया होएगा फिलहाल वही सॉल्व करके गया होगा। तो बी ऑप्शन में राइट वे ना सीधा क्लिक करूँगा। सेंसरी मोटर स्टेज इन्होंने सब तो पहला रखी सी, प्री ऑपरेशनल बाद दूजे नंबर पर रखी सी, कंक्रीट ऑपरेशनल 3rd नंबर पर रखी सी और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने 4th नंबर पर रखी सी। तो बी ऑप्शन साडे वास्ते राइट बनूगी। एज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत बारी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बी ऑप्शन साडे वास्ते राइट ऑप्शन है, ये भी ध्यान रखना। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 21 की गल कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। ध्यान रखना इंक्लूसिव एजुकेशन उत्ते क्वेश्चन है, तो केड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेने, ब्रिंगिंग ऑल द स्टूडेंट टुगेदर इन द वन क्लास। सारे बच्चे एक ही क्लासरूम च रखा जाऊगा, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, हो सकता है आ भी आऊगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कहता की है, एन एफर्ट एक्सपोज डिवर्स लर्नर टू टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू रीच दैम इंडिविजुअल लर्नर, कि बच्चे ने ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज देनी आ ताकि वो अपने आप को कॉमन मैन समझ सके। तो यह भी ऑप्शन सही है साडे वास्ते एक तरह की, ठीक है। नैक्सट आओ सी ऑप्शन कहता की है, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज सपोर्ट। सिंगल बच्चे को सपोर्ट दी जाऊगी या सर्विस दी जाऊगी हर एक बच्चे को। मतलब ये नहीं देखा जाऊगा कि बच्चा स्पैशल कैटेगरी का है, ये नहीं देखा जाऊगा बच्चा कोई साडे वास्ते नॉर्मल स्टूडेंट है। तो सी ऑप्शन भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर साडे वास्ते डी ही जा रही है सही, क्योंकि वह ऑल ऑफ अबव की गल करता है। ऊपर दिते हुए सारे साडे वास्ते की होंगे, सही होंगे। डी ऑप्शन साडे वास्ते की होगी, राइट होएगी इस चीज़ को लैके। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 22 की गल करते हैं। क्वेश्चन 22, अ चाइल्ड हु सेज, जो बच्चा कहता है इट इज अ रॉन्ग, एक गलत होगा टू स्टील, चोरी करना, ठीक है, बिकॉज ही माइट गेट कोच, अगर वो पकड़ा गया तो वुड बी, ओहो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग केड़ी स्टेज का मालिक होएगा। मालिक ही कहूँगा, अगर वो पकड़ा गया चोरी करता होया तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखियो ऑब्वियस जो चोरी करूगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑप्शन सारी दी हुई ने, लेकिन जिन्हें नोट्स पढ़े होंगे याद होएगा, MC कोड सॉल्व किए होंगे बहुत सारे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक उत्ते जाऊगा, दैट्स कॉल्ड ए ऑप्शन, जो गल करता है बच्चा वो सजा का भागी होएगा अगर वो पकड़ा जाता है कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन साडे वास्ते गल करती है ओरिएंटेशन, मतलब ओबीडेंस ओरिएंटेशन, या पनिशमेंट की गल करता है। या तो बच्चा आज्ञाकारी होएगा, नहीं तो बच्चा की होएगा सजा का भागीदार होएगा। तो ए ऑप्शन साडे वास्ते राइट होएगी इस क्वेश्चन को लैके। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता की है, दैट, मतलब जो क्वेश्चन दिता हुआ वो पहले ही फिलिंग्स ब्लैंक उन्होंने फिल करना है। मैं दैट नहीं बता, दैट मतलब ऑप्शन को ही चूज करना है। डैश इज अ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑटिज्म, ऑटिज्म की गल की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो भी ऑटिज्म उत्ते क्वेश्चन आता है तो तुम उत्थे गल करोगे फिलहाल ASD की, ये फुल फॉर्म की होंगी है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है जी, ये तुम सबनों पता होएगा। तो जिन्हें ASD के बारे पढ़िया भी है, अपनी पॉलिसीज देखी हुई है, तब बच्चा कहूगा कि है सोशल कोग्निशन की गल करूगा, बच्चे जो सोसाइटी बारे कोई ज्ञान नहीं हैगा। तो ऑप्शन है फिलहाल देख लेने केड़ी ऑप्शन दी हुई है। ए ऑप्शन कहता कि लैक ऑफ इंटेंशन, लैक ऑफ इंटेंशन साडे वास्ते ASD नहीं होंदा, और साडे वास्ते ADHD होंदा है, ये भी ध्यान रखियो, ठीक है जी, ADHD होएगा। पुअर लैंग्वेज, इंपेयर्ड सोशल कोग्निशन, तो एक ही ऑप्शन साडे वास्ते राइट ऑप्शन है, दैट्स कॉल्ड सी ऑप्शन साडे वास्ते की आ जाऊगी राइट। कमजोर समाजिक बोध का गल जो काम किया गया है वो किहदे विच है, ऑटिज्म दे विच ही गल करता है। ASD साडे वास्ते राइट होएगा, मतलब सी ऑप्शन साडे वास्ते राइट आंसर है इस चीज को लैके, ठीक है। नैक्सट आओ
अगली गल करदा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग वा बेस्ड इन जॉ क्लाउड। हुणी करके आया एक तरह की क्वेश्चन उपर भी दिता होया सी, जिस आप गल की सी कि जिहड़े बच्चे कोरिलेट होंदे ने, ठीक है, जॉन लॉक उहदे विच राइट आंसर सीगा। फिलहाल उन्हां दे अकॉर्डिंग किहड़ी होनी चाहिदी है, मतलब इस चीज़ दे विच कोरिलेट का मतलब जो असीं बच्चे नूं सिखावांगे बच्चा उही चीज़ सीख लेगा, बिहेवियर जिस तरह देवांगे बच्चा उस तरह बिहेवियर ऑन कर लेगा, ठीक है। तो इक्को ही ऑप्शन साडे वास्ते राइट आंसर आऊगा इहदे विच। बिहेवियरिज्म की गल कीती सी किन्ना ने, तुहाडे अपने जॉन लॉक ने। तो बी ऑप्शन साडे विच की आऊगा इहदे विच राइट आंसर आऊगा, ठीक है। उपर आके गया क्वेश्चन, ठीक है, जिहड़े बच्चे ने किया वो बच्चे नूं कोरिलेट मन्निया गया सीगा, तो उत्थे बिहेवियर की गल की गई सी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 बी ऑप्शन राइट आंसर है। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 25 दे विच IEP स्टैंड्स फॉर, बहुत बारी आ चुकिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IEP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਰਾਈਟ ਆंसर ਆਊਗਾ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। बाकी कोई भी नहीं मिलती है, ठीक है। एक तरह प्रोग्राम सी जो लॉन्च किया गया सीगा फिलहाल, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ क्वेश्चन नंबर 26 ਦੇ ਨਾਲ द मॉडल अबाउट द इंटरैक्शन बिटवीन, इंटरैक्शन की गल की गई है। ओबवियस 3 चीज़ों की गल की गई होगी, पढ़ लेने। इंटरैक्शन अमंग बिहेवियर, परसनस एंड इन्वायरमेंट। ध्यान रखिए जो भी बिहेवियर की गल की जाती है, परसन की गल की जाती है, इन्वायरमेंट की गल की जाती है। 3 चीज़ों के इंटरैक्शन की गल की जाती है। एल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग तब नोट्स में गल की एल्बर्ट बंडूरा ने डिवेलप किया एक तरह का ट्रायंगल कि बिहेवियर, परसन, इन्वायरमेंट द इंटरैक्शन। तो एक मॉडल लेके आंदा सी, उन्होंने मॉडल का नाम डायरैक्ट वे में क्वेश्चन च दिता होया है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म मॉडल। बाकी कोई मॉडल इन्हां नाल मिलदा जुलदा नहीं है बंडूरा के अकॉर्डिंग। तो डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा गया नोट्स विचों ही, तो डी ऑप्शन साडे वास्ते राइट आंसर आऊगा बिहेवियर, परसन, इन्वायरमेंट नूं लेके, क्योंकि उस टाइम पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होंदे सी, तो डायरैक्ट क्वेश्चन के ही आंसर सानू पता लग जाता सी, ठीक है। अगर पढ़े भी होंगे तो मैंने तुहाडे सामने डायरैक्ट टिक मार्क किया, बाकी कोई ऑप्शन देखी नहीं हैगी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म मॉडल एल्बर्ट बंडूरा दा अटैचमेंट सी बिहेवियर, परसन नूं लैके, ठीक है, और इन्वायरमेंट नूं लैके। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 27 हू कंडक्टेड द फेमस एक्सपेरीमेंट ऑफ लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग ऑफ लिटिल एल्बर्ट। मतलब इस गल की गई है एक्सपेरीमेंट, मतलब फेमस एक्सपेरीमेंट, मतलब जिन्हों ने गल की सी हु इज बीइंग द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर कौन सी बिहेवियरिज्म दे, मैं दूसरे तरीके ने मोल्ड कर देना फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो थोड़ा इतने पता लग जाऊगा डायरैक्ट वे दे नाल कि जेडे साडे बिहेवियरिज्म के फादर से साडे वास्ते कौन सीगे, वॉटसन सीगे। तो इन्हां ने गल कीती सी कंडीशनिंग दी, तो वॉटसन साडे वास्ते की आऊगा इहदे विच राइट आंसर आऊगा दे बीइंग अ फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म, ठीक है जी। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 28 दे नाल हू प्रपोज द कंसैप्ट ऑफ प्राइमरी मैंटल एबिलिटी। जो भी गल की जाती है प्राइमरी मैंटल एबिलिटी की, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला भी ये क्वेश्चन आके चुके प्रीवियस पेपर के विच जो आप करके आए हैं, तो उत्थे भी थोड़े एक ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन भी ही रखी गई सी फिलहाल। तो ऑप्शन ये आऊगी ए ऑप्शन। थ्रस्टन ने गल की सी प्राइमरी मैंटल एबिलिटी से, तो देखा जाए तो ऑप्शन बाकी पढ़ने की लड़ नहीं हैगी ये विचों, तो बाकी मैं इग्नोर करूँगा। तो ऑप्शन नंबर जो आऊगा साडे वास्ते वो ए बनूगा। मैंटल एबिलिटी प्राइमरी की गल की सी थ्रस्टन ने, ठीक है। नैक्सट आओ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कोग्निटिव डिवेलपमेंट, जिथे सोशल की गल की जाती है, समाज की गल की जाती है, मतलब उत्थे गल कादी की जाऊगी, अपने कल्चर की गल की जाऊगी। वेगोस्की ने गल की इस चीज़ की फिलहाल, ठीक है। तो ए पॉइंट पढ़ लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग इज डिटरमिन्ड बाय द जीन्स, तो उन्होंने कोई जीन्स की गल नहीं की। बी पॉइंट है इज एसेंशियली रिलेटेड टू द वंश कल्चर, ए ऑप्शन के बन सकते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी चीज़ा ही पढ़ लेने। हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड टूल्स ऑफ, ठीक है, मतलब लैंग्वेज की कोई प्रभाव नहीं पैंदा, जबकि इन्होंने नो लिखा भी, अगर इतने नो ना होंदा तो ऑप्शन साडे वास्ते ये भी बन सकती सी। वेगोस्की ने लैंग्वेज की गल की सी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से उन्होंने वास्ते लैंग्वेज था। उस तो बाद टूल ऑफ इस यूनीवर्सल एंड कॉमन ट्रेंड, ये यूनीवर्सल थॉट की गल की गई है,
ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਡੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਟਨਡ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏ ਇਨਫੈਂਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੋਲਸੈਂਟ, ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਡਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਐਡਲਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਡਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਏਜ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 2014 ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ CDP 30 ਕੁਐਸਚਨ 30 ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਕੋਈ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।